आज हम आपको आँखों के लिए एक सर्वश्रेष्ठ योग जिसका नाम है सप्त अमृत लो की विधि के बारे में बताएंगे। ये कैसे बनता है सप्त अमृत लो, क्या क्या चीज़ें इसमें पड़ती हैं, कैसे कैसे ये कितना ये लेना है और इसमें जो है किन किन रोगों में ये अत्यंत लाभकारी है। जो प्रिंसिपल जैन जी का फार्मूला है जो आँखों के लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध हुआ है। बहुत से आँखों के रोगी जो इससे ठीक हो रहे हैं, जिनकी आँखें उम्र के हिसाब से वीक हो रही हैं, उनको तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। ऐसे भी कई रोग हैं जिनका आज तक दुनिया में कहीं भी कोई इलाज नहीं हो रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर कह देते हैं कि ये इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता है। उन रोगियों को भी ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रही है ये दवाई। ठीक है, दवाई में इतनी चीज़ें डाली हुई हैं, उनमें से एक सप्तमृत लो है, उसकी आज हम महिमा या गुणगान करेंगे। ठीक है, ये आयुर्वेद में लिखा हुआ है, आयुर्वेद की किताबों में लिखा हुआ है। तो इसके जो रिज़ल्ट है, पहले आप ये देख ले कि कैसे ये रिज़ल्ट, कितने बढ़िया रिज़ल्ट इसके आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप इसकी वीडियो देखिए, तो उसके बाद हम जो है इसकी सप्तमृत लो के बारे में मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, मैं सरसे ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। अच्छा जी। ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤੋਂ 8-9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆਪਣੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾਓ ਕਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਇੱਥੋਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਅੰਬਾਲਾ ਅੰਬਿਕਾ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 5-7 ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਰੈਟੀਨਾ ਪਿਗਮੈਂਟੋਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਦਿੱਕਤ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਡੋਲੀ ਜਾਣੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਚੜ੍ਹਨੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਠੁੱਡਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ YouTube ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਟੀਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਰੈਟੀਨਾ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਬਿਕਾ ਜੀ ਕਲੀਨਿਕ ਤੋਂ, ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਤਪਨ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੈਨ ਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਚਮੜੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੜੀ ਲੀਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਦਮਾ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ, ਚਮੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ, 15 ਦਿਨ ਹੀ ਖਾਧੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਏ, ਹਾਲੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੱਗਿਆ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ। ਕੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ? ਬਗੈਰ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਨਾਲੇ ਖੇਤ ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਸੜਕ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਸੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬੈਟਰੀ ਤਾਂ ਜਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਐ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਟੀਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। 15 ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਪੂਰੀ ਖਾਧੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਾਧੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਾਧੀ। ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਉਵੇਂ ਕੀਤੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਰੈਟੀਨਾ ਦੀ,
ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲਵੇ, ਅੰਬਾਲੇ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜਹਾਨ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਪਸੂਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਓ, ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਰੈਟੀਨਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਬਿਕਾ ਹਸਪੀਟਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ, ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। 15 ਦਿਨ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ खुश हो जी, ਹਾਂਜੀ। धन्यवाद। ऐसी बीमारियों का इलाज दुनिया में नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर कह देते हैं कि ये इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता है। उन रोगियों को भी ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रही है ये दवाई, ठीक है। दवाई में इतनी चीज़ें डाली हुई हैं, उनमें से एक सप्तमृत लो है। जो बच्चे आजकल सारा दिन मोबाइल देखते हैं, कम रोशनी में मोबाइल देखते हैं और लगातार मोबाइल देखते हैं, रात को दिन को रोशनी कम है, ब्राइटनेस ज़्यादा कर लेते हैं, उनको तो कई बार रिज़ल्ट नहीं भी आते हैं, कम आते हैं। पर जिनकी उम्र के हिसाब से नज़र वीक हो रही है, उनके लिए ये बहुत बढ़िया जो मेडिसिन है बहुत बढ़िया रिज़ल्ट दे रही है। आइए जानते हैं सप्तमृत लो के बारे में। इसमें क्या क्या पड़ता है? हरड़ एक बाग, बहेड़ा एक बाग, आंवला एक बाग, लोह बसम एक बाग, मुलट्ठी एक बाग। सभी जो द्रव्य हैं इनको एक एक बाग लेके, सम बाग लेके, बराबर मात्रा में लेके अलग अलग महीन चूरन, बारीक चूरन बनाना है और आपस में मिलाकर इसको कपड़ छान कर लेना है, मतलब छान लेना है। तो जो चूरन तैयार हो जाएगा उसे सप्तमृत लो कहते हैं। इसकी मात्रा कितनी बताई गई है? वैसे तो इसकी मात्रा जो है भस्म होती है, इसमें लो भस्म है। आजकल के जो शरीर हैं वो भस्में जल्दी नहीं पचा सकते हैं। पहले शरीर जो थे स्ट्रांग होते थे, भस्में पचा लेते थे, पर आजकल जो है इसकी मात्रा कम कर दी गई है। इसकी जो मात्रा है वो रोगी के वेट के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से, जिस वातावरण में वो रह रहा है उसके हिसाब से, ऋतु के हिसाब से, सर्दी गर्मी के हिसाब से दी जाती है। वैसे अंदाज़न इसकी जो मात्रा है 1 रत्ती जो है दी जाती है। 1 रत्ती अंदाज़न कितना होता है? 2 तरह की रत्ती मानी जाती है। एक होती है 122 mg की, 122 मिलीग्राम, और एक कई मानते हैं इसको 182 182 mg मिलीग्राम की। 122 mg समझ लो चाहे 182 mg समझ लो, तकरीबन जो छोटा कैप्सूल होता है वो 250 mg का होता है। मान लो आधा कैप्सूल, ठीक है। इतनी मात्रा जो है तकरीबन आम जो है ली जाती है। तो इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके इतने फ़ायदे हैं, आप सुन लोगे तो हैरान रह जाओगे। इसमें थोड़ा सा आप मोटा मोटा ले लेते हैं। दंत रोग, कर्ण रोग, कानों के रोग, दांतों के रोग, ठीक है। और इससे जो है यह रक्त शक्ति को बढ़ाता है। लो बसम है, ठीक है, जो खून की शक्ति है उसको बढ़ाता है, खून को बढ़ाता है। इसके सेवन करने से मुख कांतिवान तथा सुगंधि युक्त होता है। कहने का मतलब ये है कि जो फेस है उसमें ग्लो बढ़ता है, लालीपन बढ़ता है, आभा जो है सुंदर होती है, ठीक है। फेस का इंप्रेशन जो होता है, उसका देखने का रूप कह लो, वो ग्लो कह लो, वो बहुत ही बढ़ जाता है, अट्रैक्टिव हो जाता है, सुंदर हो जाता है। बाल अत्यंत कृष्ण वर्ण हो जाते हैं, जो अपने सिर के बाल हैं वो बहुत काले हो जाते हैं। चलो हमने बात करनी है आँखों की। नेत्र रोग नष्ट होते हैं, मेन हम नेत्रों की बात कर रहे हैं। तो इसका सेवन करने वाले व्यक्ति गिद्ध के समान दीर्घ दृष्टि युक्त होकर सुखपूर्वक 100 वर्ष तक जीवन जीता है। गिद्ध, ईगल के इस बुक में लिखा हुआ है,
आयुर्वेद की बुक में कि सप्तमृत लो जो है गिद्ध के समान दीर्घ दृष्टि युक्त, ईगल के समान उसकी जो तेज नज़र हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं बाज जैसी तेज नज़र, बाज जैसी तेज नज़र, बाज की नज़र भी बहुत तेज होती है, ईगल की जो नज़र है वो भी बहुत तेज होती है। तो ये देख लो कि अगर ईगल है कितने किलोमीटर से ऊपर से जो है छोटी सी चूहिया नीचे देख लेती है, अपना शिकार देख लेती है वो, तो इसको सप्तमृत लोह को ये बताया गया है कि गिद्ध के समान दीर्घ दृष्टि युक्त, मतलब बहुत ही तेज नज़र हो जाती है। सुखपूर्वक 100 वर्ष तक जीवन जीता है, यानी कि उसकी जो आदमी है वो अपनी जितनी भी लंबी उम्र जीता है वो सुखपूर्वक जीता है। मतलब आंखों की रोशनी के लिए सप्तमृत लोह बहुत ही बढ़िया माना गया है। ठीक है जी। सप्तमृत लोह में जो सभी चीज़ें पड़ती हैं, हरड़ भी आपको पता है, बेहड़ा भी पता है, आंवला भी पता है, लोह बसम पता है, मुलट्ठी का भी पता है। तो जब ये चीज़ों सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो इसका असर जो है और भी कई गुना बढ़ जाता है। आप ये देखिए कि एक चीज़ इतना गुणकारी है और जो 26-27 चीज़ें पड़ती हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें पड़ती हैं, वो कितना जो औषधि बनती है ये चीज़ों पढ़ के मिक्स होके वो कितनी गुणवान होगी, कितना अच्छा रिजल्ट होगा। जरूरी नहीं है कि ये अकेली आंखों में काम करेगी या अकेली बालों में काम करेगी, ये और भी कई रोग हैं जिन पे ये काम करती है। ठीक है जी। कहने का मतलब ये है कि सप्तमृत लोह जो है आंखों के लिए, दांतों के लिए, कानों के लिए, बहुत ही बालों के लिए, खून के लिए, अपने फेस के ग्लो के लिए बहुत ही बढ़िया है। प्रिंसिपल जैन जी ने बताया कि जो भी पेशेंट हैं, आंखों के रोगी हैं, नज़र कमज़ोर है, उनको सप्तमृत लोह के बारे में बताना चाहिए। उनके कहने के बाद ही मैं ये जो है सप्तमृत लोह की वीडियो बना रहा हूँ कि जो भी कोई इसके पेशेंट हैं वो इसकी सप्तमृत लोह की वैल्यू, महत्ता को समझ लें। ठीक है। और इसका जो है अपने वैद्य जी से पूछ के, उम्र के हिसाब से, वेट के हिसाब से, मौसम के हिसाब से वो आपको इसकी मात्रा बताएंगे, कैसे लेनी है, किसके साथ लेनी है, वो सारा आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही इसको इस्तेमाल करना। कोई भी चीज़ ज़्यादा जो है और अनजानेपन में ली गई चीज़ जो भी कोई मेडिसिन होती है वो नुकसान भी कर जाती है। आप अपने डॉक्टर से पूछ कर ही इसका इस्तेमाल करना है।